Hello, good morning, students. So, in our today's video, we are reading the poem Ulysses that is written by Alfred Lord Tennyson. In our last video, we were discussed about the poet and the short introduction of the poem. In our today's video, we will read the poem line by line. So, it's a long poem and is written in free verse. So, it little profits that an idle king by this still heareth among these barren crags, messed with an aged wife, I mate and dole, unequal laws unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone on shore, and when through scudding drifts the rainy heights waxed the dim sea, I am become a name for always roaming with a hungry herd. Much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least but honoured of them all, and drunk delight of battle with my peers, far on the ringing plains of windy Troy. I am a part of all that I have met, yet all experience is an arc wherethrough gleams that untravelled world whose margin fades forever and forever when I move. How dull it is to pause, to make an end, to rust unburnished, not to shine in use. So it little profits that an idle king. So who is this idle king? This idle king is यूलिसिस. ठीक है, आइडल का मतलब होता है जिसको अपन कहते हैं लेज़ी कह सकते हैं. ठीक है, बेकार एकदम से. So it little profits that an idle king. So here King Ulysses says that he finds little delight and profit as a lazy king ruling over his people. Okay, he can only give his uncivilized and cruel people unfair and imperfect laws. So by this still heareth among these barren crags, messed with an aged wife. ठीक है, मतलब यहाँ पर आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैवल, ही इज जस्ट सिटिंग विथ हिज एजेड वाइफ. her name is Penelope. Okay, so he is saying that here as an idle king, he is just distributing unequal laws among his uncivilized people. So he is calling his people uncivilized and cruel. I mate and dole unequal laws unto a savage race. So I am just distributing unequal laws among my savage race. So his people do not know him much, as he has been absent from his kingdom for a pretty long time. His people have no higher ideals of life and government. That's why he is calling them uncivilized and cruel. They spend their time in satisfying the material needs of their lives. They hoard wealth. His people are just accumulating wealth, just accumulating more and more money, and they do not have any interest in we can say spiritual life. So the spend they spend their time in eating, drinking, and sleeping. Thus, they live a lazy life. That's why Ulysses is calling them uncivilized and cruel people. That hoard and sleep and feed and know not me. So उसकी जो जनता है, उसके जो लोग हैं, उसके स्टेट को वो यूलिसिस को नहीं जानते हैं. और नहीं जानने का रीज़न ये है कि वो बहुत सारा टाइम यूलिसिस ने अपने राज्य से बाहर रहते हुए बिताया है, क्योंकि वो हमेशा ट्रैवल करता रहा है. ठीक है, बहुत सारे युद्ध वगैरह होते रहते थे किसी और स्टेट के साथ में, तो वो अपने राज्य से हमेशा बाहर रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो जनता है, उसके जो लोग हैं, वो उसको नहीं जानते हैं. ठीक है, और यूलिसिस को लगता है कि उसके राज्य के जो लोग हैं
वो सिर्फ वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, ठीक है, उनको सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, इसलिए वो उनको बारबरस कहता है, क्रूल कहता है, ठीक है, अनसिविलाइज्ड पीपल कहता है, जिनको सिर्फ चीज़ें जमा करने का शौक़ है, सोने का शौक़ है या फिर खाने का शौक़ है, ठीक है, और जो यूलिसेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, लेकिन यूलिसेस की जो स्पिरिट है, ठीक है, इट कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, ठीक है, यूलिसेस को जो जाना जाता है वो उसको ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, ठीक है, एडवेंचरस था बहुत ज़्यादा। तो यूलिसेस फाइंड्स दैट ही कैन नॉट लिव अ लेजी लाइफ एट होम लाइक हिज पीपल, ठीक है, ही डिसाइड्स टू सेट आउट ऑन फ्रेश एडवेंचरस, he wants to explore new fields of knowledge, he wants to visit new lands and people, he wants to enjoy life to the utmost, he wants to do all that he can to satisfy his thirst for knowledge. So the most important thing in this poem is Ulysses has a spirit that is hungry of knowledge, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता था, न्यू मीनिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहता था, न्यू वर्ड को एक्सप्लोर करना चाहता था। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज जो वर्ड होता है उसका मतलब कीचड़ होता है, ठीक है, तो लाइफ टू द लीज का मतलब है कि ही जस्ट वॉन्ट्स टू एन्जॉय, ही जस्ट वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर द लाइफ टू द अटमोस्ट लेवल, ठीक है ना, एक लास्ट जो लेवल होता है, ठीक है, वहाँ तक वो लाइफ को जीना चाहता था, लाइफ को समझना चाहता था, एक्सप्लोर करना चाहता था। All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone, ठीक है, मीन्स वो हर तरह के लोगों के साथ में मिला है अपने ट्रैवल के दौरान उन लोगों से भी मिला है जो उसको पसंद करते थे, ठीक है, जो उससे प्रेम करते थे, और उन लोगों से भी मिला है जो उससे प्रेम नहीं करते थे, ठीक है, तो वो खुश भी रहा है और उसने सफ़र भी किया है, तो मीन्स उसने हर तरह का एक्सपीरियंस लिया है, अच्छा भी रहा है उसका एक्सपीरियंस और बुरा भी रहा है। बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही रिकॉल्स हिज पास्ट लाइफ, ही हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ब्रिलियंट एक्टिविटीज़ टू हिज क्रेडिट इन द पास्ट। Of course, he has suffered greatly. He has also seen hard times. He has experienced hardships, sometimes in the company of devoted friends and sometimes all alone. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं चाहता लाइफ को एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना, वो अभी भी चाहता है कि वो लाइफ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करे, और ज़्यादा वो ट्रैवल करे। ही हैज़ हैड मैनी एडवेंचरस ऑन लैंड एंड ऑन द सी, मीन्स वो हर तरह की जगह पर गया है। He never felt frightened even when broken clouds flew rapidly before a strong wind and the heights or a group of stars known as the rainmakers, or we can say a group of 7 stars threatened heavy rains. So means हर तरह का मौसम, चाहे कैसा भी वेदर रहा हो, क्लाइमेट कैसा भी हो, उसने हर तरह के क्लाइमेट में, हर तरह के वेदर में ट्रैवलिंग की है, ठीक है ना। थ्रू स्क्यूडिंग ड्रिफ्ट जो वर्ड है उसका मतलब होता है फ्लाइंग जो ब्रोकन क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, आसमान में जो ब्रोकन क्लाउड्स है उसके लिए यूज़ किया गया है वर्ड स्क्यूडिंग ड्रिफ्ट्स, ठीक है। और हाइट्स जो हैं वो इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेन, और इनको रेन मेकर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसने हर तरह के वेदर में, हर तरह के मौसम में ट्रैवल किया है, हर तरह का समय उसने देखा है, अच्छा समय भी देखा है तो वर्स्ट टाइम भी उसने देखा है, लेकिन सभी तरह का जो टाइम है उसको यूलिसेस जो है वो एक एक्सपीरियंस की तरह लेता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो वो ये कहे कि नहीं अब मैं ट्रैवल नहीं करना चाहता, वो फिर भी ट्रैवल करना चाहता है, वो फिर भी न्यू मीनिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहता है। क्योंकि उसकी जो स्पिरिट है वो ही एडवेंचरस है, ठीक है, उसकी जो स्पिरिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करना चाहती है। I am become a name for always roaming with a hungry heart. Much have I seen and known.
ठीक है। सो ही इज़ नॉन फॉर हिज हंग्री हर्ट हु इज़ ऑलवेज रोमिंग अराउंड। ठीक है, मीन्स उसका जो हर्ट है वो ही हंग्री है। किसके लिए हंग्री है? नॉलेज के लिए हंग्री है। ठीक है ना। तो ही हैज़ अ हंग्री हर्ट. He never felt frightened even when broken clouds. Okay, he never cared for the weather, whether good or bad. He never allowed his adventurous activities to stop because of any danger or difficulty. So he says he is known in almost all countries. So he has traveled almost in all the countries. He has won a worldwide fame because he has visited many parts of the world with the object of having the pleasure of adventure and gaining knowledge and experience. So I am become a name for always roaming with a hungry herd. Much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least but honored of them all. तो यूलिसिस कह रहे हैं कि मैं हर जगह पर गया हूँ, मैंने बहुत सारी सिटीज़ में ट्रैवल किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अलग अलग लोगों के मैनर्स जो तरीके हैं, वहाँ के कल्चर्स जो हैं, ठीक है, सबको देखा है, वहाँ के क्लाइमेट्स को मैंने देखा है, वहाँ की काउंसिल्स को मैंने देखा है, वहाँ के गवर्नमेंट्स को मैंने देखा है। ठीक है ना। मीन्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। ठीक है, और मेरा सभी जगह पर एक तरह से मुझे ऑनर मिला है, सभी जगह पर मेरा सम्मान किया गया है। He has acquired wide experience. He has come across persons of different culture and manner, climate and conditions of life, and he has visited councils and government of various countries. He has played an important part in all that he has seen. And drunk delight of battle with my peers far on the ringing plains of windy Troy. So wherever he has gone, he has been honored and welcomed by the people. He has taken part in the ट्रोजन वॉर। ठीक है, मीन्स ट्रोजन जो वार हुआ था उसमें भी उसने पार्ट किया था। आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। तो मैं सभी चीज़ों का एक पार्ट रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर भी मैं गया हूँ, आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। तो सभी चीज़ों से जहाँ पर भी मैं गया हूँ, जिन भी लोगों से मैं मिला हूँ, उन सब का मैं क्या रहा हूँ, हिस्सा रहा हूँ। ठीक है। Ulysses is just feeling delight in recalling his experience in the Trojan War, which lasted for 10 years. The battlefield were full of the din of clashing weapons, strong winds blew there. सो ट्रोजन वार का जो सीन है उसको बताया गया है, और ट्रोजन वार जो था उसमें भी यूलिसिस ने पार्ट लिया था। सो आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर थ्रू ग्लीम्स दैट अनट्रैवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव। ठीक है, तो एक इमेज यहाँ पर यूलिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं। येट ऑल एक्सपीरियंस इज़ एन आर्क। आर्क का मतलब होता है एक कह सकते हैं चट्टान का हिस्सा होता है जिसके नीचे से हम जा सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। ठीक है, एक तरफ खड़े होकर हम दूसरी तरफ देख सकते हैं। तो यूलिसिस कह रहे हैं कि ये जो आर्क है वहाँ से मैं ग्लीम्स को देख सकता हूँ, और मुझे किसकी ग्लीम्स नज़र आ रही हैं? दैट अनट्रैवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव। जिसकी जो ग्लीम्स हैं, मतलब मैं जैसे जैसे उसके नज़दीक जाता हूँ, हमारी जो दूरी है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है, तो यूलिसिस जो है उसको एक तरह से वो अनट्रैवल्ड वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ पर उसने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है, वो उसको देख पा रहा है। और जैसे जैसे वो मूव करता है, जैसे जैसे यूलिसिस आगे की तरफ जाता है, उस अनट्रैवल्ड वर्ल्ड की और यूलिसिस के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है, he says that he has become a part of all that he has seen and experienced. His experience has formed his character. He has acquired a wider outlook. He has developed an unending desire to acquire newer and newer knowledge. He is not satisfied only with what he has seen and experienced. His experience and knowledge only opens to his view an infinite region of knowledge.
Knowledge is an arced gateway through which a man sees what he has not seen. Ulysses wants to approach those reasons. ठीक है, तो नॉलेज जो है यहाँ पर एक आर्क्ड गेटवे की जैसे है, थ्रू विच ए मैन सीज वॉट ही हैज़ नॉट सीन. ठीक है, जिसमें से कोई भी इंसान वो चीज़ देखता है जो अब तक हमने नहीं देखी है, जिसका एक्सपीरियंस हमें अभी तक नहीं रहा है. एंड यूलिसिस ऑल्सो वॉन्ट्स टू अप्रोच दोज रीजन्स ऑफ वी कैन से नॉलेज. How dull it is to pause. How dull it is to pause to make an end, to rust unburnished, not to shine in use. So Ulysses is saying that how dull it is to pause, कि लाइफ में पोज हो जाना, रुक जाना, एंड टू मेक एन एंड, और किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना. ठीक है, ये कितना डल है, ये कितना बुरा है. मीन्स हमें एक तरह से हम इसको एक इंस्पिरेशन की जैसे अगर लें, हम यूलिसिस पोएम को अगर हम एक प्रेरणा की जैसे लें, तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमें किसी स्टेज पर जाकर ये लगे कि येस आई हैव अक्वायर्ड इनफ नॉलेज एंड दैट इज़ सफिशिएंट. ठीक है, सफिशिएंट होता नहीं है कुछ भी, इनफ होता नहीं है कुछ भी. तो यूलिसिस को लग रहा है कि हम अगर लाइफ में पोज कर देते हैं, हमें ऐसा लगने लग जाता है कि ठीक है इतना बहुत है. ठीक है, और किसी भी चीज़ का अगर हम एंड करते थे, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ नॉलेज. ठीक है, यहाँ पे स्पेशली हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, हम न्यू मीनिंग्स की बात कर रहे हैं, हम एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही है कि आप पैसों में ये सोचें कि हाँ ठीक है मेरे पास में बहुत पैसे आ गए हैं तो इनफ है. ठीक है, आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करनी चाहिए. तो यहाँ पर पैसों की बात नहीं, यहाँ पर न्यू मीनिंग्स की बात है, एक्सप्लोरेशन की बात है, एडवेंचरस की बात है, नॉलेज की बात है. ठीक है, so it is dull to pause and to make an end according to Ulysses. तो यूलिसिस के हिसाब से पोज होना नहीं चाहिए लाइफ में. ठीक है, स्टॉपेज नहीं होना चाहिए, एंड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का. क्यों? टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज़. क्यों? क्योंकि ऐसी कोई तलवार, ठीक है, ऐसी कोई तलवार जो सिर्फ रखी हुई है, अनबर्निश्ड का मतलब यहाँ पर एन अनयूज्ड स्वॉर्ड से लिया गया है. तो ऐसे कोई स्वॉर्ड जिसका हमने यूज़ नहीं किया है, वो ऐसे ही रखी हुई है, और रखे में क्या लग गई है, वो उसमें जंग लग गई है एक तरह से. ठीक है, और वो शाइन नहीं कर रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो वो इनएक्टिविटी है. अकॉर्डिंग टू यूलिसिस, एक्टिविटी मीन्स लाइफ एंड इनएक्टिविटी मीन्स डेथ. ठीक है, अगर लाइफ है, अगर आप जिंदा हो, तो इट मीन्स यू आर एक्टिव, एंड इफ़ यू आर इनएक्टिव इन योर लाइफ मीन्स यू आर डेड, यू आर नॉट लिविंग इनफ. ठीक है, सो ही वॉन्ट्स अ लाइफ ऑफ एक्टिविटी. देर इज़ नो सेंस इन आइडलिंग अवे लाइफ. द स्वॉर्ड गेट्स रस्टी इफ़ इट इज़ नॉट यूज्ड. स्वॉर्ड जो होती है उसमें भी जंग लग जाती है अगर इसको नहीं यूज़ किया जाएगा. तो इन द सेम वे हमारी जो विट है, हमारी जो बुद्धि है, ठीक, हमारा जो माइंड है, उसमें भी क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगी एक तरह से. देर इज़ नो सेंस इन आइडलिंग अवे सो लॉन्ग एज इट इज़ इन यूज इफ़ ऑलवेज शाइन्स. इन द सेम वे अ मैन बिकम्स यूजलेस एंड डल इफ़ ही गिव्स अप एक्टिविटी. ठीक है, यूलिसिस सेज दैट मियर ब्रीथिंग इज़ नॉट लाइफ. सिर्फ सांस लेना ये लाइफ नहीं है. ठीक है, मियर ब्रीथिंग इज़ नॉट लाइफ. लाइफ इज़ समथिंग मोर देन that a man should try to enrich his knowledge and experience and should be engaged in the task up to the end of his life. ठीक है, तो सिर्फ ब्रीथ करना, सिर्फ सांस लेना, इट इज़ नॉट लाइफ. ठीक है, वो तो सभी लेते हैं. ठीक है, अगर सांस लेने को, ब्रीदिंग को ही हम लाइफ कहते हैं, तो देयर इज़ नो डिफरेंस, वो सब करते हैं. इट इज़ समथिंग मोर देन ब्रीथिंग. ठीक है, एंड अ मैन शुड ट्राई टू एनरिच हिज नॉलेज इन हिज लाइफ. Life piled on life were all too little, and of one to me little remains. But every heart is saved from that eternal silence, something more, a bringer of new things. And while it were for some 3 suns to store and hoard myself, and this grey spirit yearning and desire to follow knowledge like a sinking star beyond that most bound of human thought. So, life piled on life, life after life. ठीक है,
So, according to Ulysses, a single life is quite insufficient to acquire full knowledge and experience of the world. तो अगर कोई भी इंसान इस पूरे संसार को, ठीक है, यूनिवर्स को एक तरह से एक्सपीरियंस करना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, एंड इफ़ ही वांट्स टू एक्वायर फुल नॉलेज, तो दिस सिंगल लाइफ इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है। तो अगर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है और फुल नॉलेज को और नए ट्रैवल करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, तो उसके लिए दिस सिंगल लाइफ इज़ नॉट सफिशिएंट. He knows that the sea of knowledge and experience is unbounded, and even succession of lives would be quite insufficient to acquire complete knowledge and experience. And of one to me little remains. ठीक है, सो लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल. ठीक है, एक सिंगल लाइफ बहुत नहीं है. अगर हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम अगर न्यू नॉलेज को एक्वायर करना चाहते हैं, एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, और ये एक जो लाइफ मेरे को मिली है, ठीक है, उसका भी थोड़ा सा ही हिस्सा मेरे पास में बचा है. इट टू मी लिटिल रिमेन्स. ठीक है, आई मीन्स आई हैव लिव्ड माई लाइफ. ठीक है, मीन्स ओल्ड एज में है अभी यूलिसिस, इसलिए उसने लगभग अपनी लाइफ जी ली है. ठीक है, सो ही सेज दैट ही हैज़ ग्रोन ओल्ड. ही नोज दैट ओनली अ फ्यू ईयर्स आर लेफ्ट एट हिज डिस्पोजल. यूलिसिस डज नॉट वॉन्ट टू लेट द टाइम स्लीप बाई इन आइडलनेस. ठीक है, तो वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ जो है वो ऐसे ही निकल जाए. He wants to make the best use of every moment. He is however not afraid of death. But every hour is saved from that eternal silence. Eternal silence का मतलब यहाँ पर death से लिया गया है. तो वो जो eternal silence है, वो जो death है, उससे वो हर एक hour को बचा लेना चाहता है. Means he wants to use every hour. ठीक है, मतलब वो हर मोमेंट का, हर पल का यूज़ करना चाहता है. समथिंग मोर, अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स. ठीक है, और देर इज़ मच टू बी डन इन लाइफ. Hence it would be very wrong in his part to stay for some 3 years among his people and spend his life like them in storing and hoarding the material things of life. And while means here useless, and while it were for some 3 sons to store and hoard myself. यहाँ पर 3 sons जो वर्ड यूज़ किया गया है वो ईयर्स के लिए यूज़ किया गया है. ठीक है, सो वो नहीं चाहता है, यूलिसिस नहीं चाहता है कि while it were for some 3 sons to store and hoard myself and this grey spirit yearning and desire. grey spirit का मतलब यहाँ पर उसने अपनी old age से लिया है. To follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought. So there is much to be done in his life. He does not find any comfort in staying at home and hoarding material things because his spirit is yet very anxious to move. तो वो घर पे नहीं रुकना चाहता है एक comfortness के साथ में. Though he is grown old, yet he is anxious to move to acquire more knowledge. In spite of his old age, Ulysses eagerly desires to gain new experiences of life, such as to human being has never attained. Knowledge is compared to a star which sinks below the horizon to appear again in another world. Ulysses desires to go beyond the utmost limit of knowledge and experience that has been attained by mankind. ठीक है, so though Ulysses is feeling that he is growing old, but his grey spirit is still yearning in desire. And in what kind of desire? His spirit is yearning in desire to follow knowledge like a sinking star. ठीक है, तो ओल्ड एज में है, लेकिन फिर भी जो उसकी स्पिरिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को फॉलो करना चाहता है. ठीक है, ही डिज़ायर्स टू एक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज बियॉन्ड दैट मोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट. इवन वो उस नॉलेज को गेन करने की इच्छा रखता है जो ह्यूमन थॉट से भी परे है. ठीक है, बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन थॉट, जो ह्यूमन थॉट हम जितना सोच सकते हैं ना, इतना नॉलेज, उससे भी कहीं ज़्यादा नॉलेज को वो गेन करने की, एक्सप्लोर करने की इच्छा करता है. ठीक है, तो यूलिसिस जो है वो उसको हम एक तरह से एक इंस्पिरेशन की जैसे, मैं पर्सनली एक इंस्पिरेशन की जैसे उसको लेती हूँ.
ठीक है, मीन्स वो थका हुआ नहीं है, वो फील ही नहीं करता कि वो थका हुआ है, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, उसने बहुत ट्रैवल कर लिया है, बहुत एडवेंचर उसने अपनी लाइफ में कर लिया है, नाउ ही हैज़ टू स्टॉप, कि अब उसको रुक जाना चाहिए, उसको बहुत नॉलेज है, ठीक है, उसको ऐसा नहीं लगता है। इस एज में भी उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उसके पास में वो नॉलेज नहीं है और वो और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है मीनिंग्स को, और ज़्यादा वो ट्रैवल करना चाहता है। सो आज की क्लास में यही पार्ट करेंगे हम। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पोएम का बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे।